Okay everyone, so I'm starting it again. We have discussed exercise 13.2 up till question number 3. And in question number 4, we have to draw a triangle. हमें एक triangle बनाना है जिसमें we have to draw one line of symmetry. ठीक है, आपको first question में you have to draw a triangle जिसमें आपको एक line of symmetry मिले. ठीक है, so we have already studied that in isosceles triangle there is only one. In isosceles triangle there is only one line of symmetry. Isosceles triangle क्या कैसा triangle होता है जिसकी दो sides equal होती हैं. If this is a triangle ABC, these two sides of the triangle are equal, तब हम इसमें सिर्फ एक line of symmetry बना सकते हैं. कैसे? हम इसको अगर बीच में से fold करेंगे, let this be your line of symmetry. ठीक है, let L be your line of symmetry. अगर आप इसको बीच में से फोल्ड करोगे then only you will find कि जो ये B वाला एंगल है C वाले एंगल को ओवरलैप करेगा and this और ये पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा. ठीक है, अगर आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री B के अराउंड ड्रॉ करना चाहोगे तो ये जो C वाला साइड है ये A को ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है, तो इन केस ऑफ ट्रायंगल wherein we have to draw one line of symmetry, you will draw it like this in case of isosceles triangle. तो in answer आपको ये triangle भी draw करके दिखाना है and you have to write the triangle in which there is exactly the triangle in which the triangle in which there is exactly one line of symmetry. I am writing S for symmetry. पूरा word नहीं लिखूँ. Is isosceles triangle. Okay. So a triangle in which there is only one line of symmetry, that triangle is known as isosceles triangle. Okay. Now moving towards part B. Part B में in part B you have to draw a triangle जहाँ पे आपको दो line of symmetry मिले. ठीक है, आपको ऐसा triangle बनाना है where you have to draw two lines of symmetry. ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो. आइसोसेलेस अभी हमने देख लिया है ना. आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, बी पार्ट में पूछा गया ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यू विल राइट इट देयर इज नो ट्रायंगल इन व्हिच वी हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो हियर यू विल राइट देयर इज नो ट्रायंगल वेयर there are two lines of symmetry. ठीक है, now in third part we have to draw a triangle जहाँ पे exactly three lines of symmetry हो. तो exactly three lines of symmetry के लिए ये एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब all the three sides of the triangle should be equal. In equilateral triangle all the three sides of the triangle are equal. So in this case you will get three lines of symmetry. तीन lines of symmetry मिलेगी. कैसे? एक A के along ऐसे मिल जाएगी, एक B के along और एक C के along. तो here you will get three lines of symmetry. Let this be L1, ये है L2 और ये है L3. ओके, जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंशन द नेम ऑफ द लाइन. सो इन दिस केस वेयर यू हैव टू ड्रॉ थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी गेट exactly three lines of symmetry. Okay, in case of equilateral triangle you get three lines of symmetry. Now the last part में पूछा है आपको ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसमें कोई भी सिमेट्री ना बने. ठीक है,
as we know that in case of scalene triangle, no sides are equal. All the three sides are of different length. So in this case, you will write the scalene triangle has no lines of symmetry. मतलब scalene triangle आपका ऐसा तीन अलग अलग साइड, ये वाली साइड भी अलग होगी, A, B, C. ठीक है, मान लो अगर AC जो है वो 7 सेंटीमीटर की है तो AB होगी 5 सेंटीमीटर की, है ना, एंड BC कितने की होगी, ये मान लो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की. तो दिस इज अ स्केलिंग ट्रायंगल wherein all the three sides of the triangle have different measure. So since it has different measure, so there will be no line of symmetry in case of scaling triangle. So in part D where you have to mention no lines of symmetry, you will write in scaling triangle there is no line of symmetry. ठीक है, तीन ट्रायंगल्स हमने पढ़े हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलिंग. तो स्केलिंग ट्रायंगल में there is no line of symmetry. In case of equilateral triangle we have 3 lines of symmetry. Okay, and in case of isosceles triangle we have exactly 1 line of symmetry. तो तीन ट्रायंगल्स हैं, उनकी तीन सिमेट्री है. ठीक है, पर आप क्वेश्चन 2 में देखो कि उसमें आपसे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछा जा रहा है, इसीलिए हियर वी हैव रिटन दैट देयर इज नो सच ट्रायंगल जहां पे हमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिले. ठीक है, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि आपको जब स्केलिंग ट्रायंगल बोला है तो यू विल राइट नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जहां पे तीन साइड्स इक्वल है, यू विल राइट देयर आर 3 साइड्स ऑफ सिमेट्री. In case of isosceles triangle where there are 2 sides equal, you will write there are 2 lines of symmetry. ठीक है, तो this was your question number 4. बहुत इजी है, याद रखना. और ये अगर आप खुद से ड्रॉ करके पेपर कट करके करोगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक स्क्वायर्ड पेपर पे, स्क्वायर्ड पेपर के मतलब बॉक्स वाला पेपर, स्केच द फॉलोइंग. आपको स्केच करना है, आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, इसको हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे, स्लीपिंग लाइन, है ना, लेटी हुई लाइन, दैट लाइन इज नोन एज स्लीपिंग लाइन. बट वी हैड अ डिफरेंट टर्म फॉर इट. स्लीपिंग लाइन को वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल लाइन. Sleeping lines are called as horizontal lines. Okay. तो जहाँ पे भी horizontal word लिखा है, there you have to understand that we are talking about a line which is lying flat on the surface. मतलब sleeping lines are known as horizontal lines. और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग कहते थे standing line. ठीक है, दिस इज नोन एज स्टैंडिंग लाइन. इसको वी कॉल्ड इट एज वर्टिकल लाइन. ओके, दिस इज नोन एज स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइंस को वी कॉल्ड इट एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन को वी कॉल्ड इट एज वर्टिकल लाइन. ठीक है, दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ लाइन. अब आपको क्वेश्चन में जहां भी हॉरिजॉन्टल वर्ड दिखाई दे, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट this type of line which is lying flat on the surface. Okay, और जहाँ पे क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन को लिखा हुआ दिखे आपको, तो यहाँ पे आपको समझना है कि that we are saying about line which is standing. तो write it in your book or your copy somewhere जहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि that sleeping lines are known as horizontal lines and standing lines are known as vertical line. Okay. So these are the 2 things. Based on these 2 lines, we will solve our question number 5. Okay. The first part, आपको एक triangle बनाना है. A triangle with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो बट वर्टिकल लाइन ना हो. ठीक है, और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए. तो आप क्या करो, ये आपका ट्रायंगल है, इसका फेस कर दो ऐसे. ठीक है, और यहाँ से आप अपनी एक वर्टिकल लाइन निकाल दो.
ठीक है, इट शुड पास एग्जैक्टली इन द मिडल, है ना, ताकि ये वाला जो कॉर्नर है इस पे मीट करे और ये एक सिमेट्रिकल फिगर बनाए। ठीक है, तो इट शुड पास थ्रू द मिडल, और ये हमारी लाइन क्या होगी, एल। इन ब्रैकेट यू विल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाम दे दिया आपने लाइन को एल और आपने लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके साथ साथ आप ट्रायंगल को भी लेबल करोगे। Here you will write in triangle A B C L1 is horizontal line of symmetry। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी, वर्टिकल लाइन नहीं बनानी थी, मतलब ऐसी कोई सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी। आप कर भी नहीं पाओगे, अगर आप यहाँ से ऐसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सिमेट्री फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में ट्रायंगल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही बन पाएगी सिमेट्री की। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी में आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो और वर्टिकल लाइन भी हो। क्वाड्रिलेटरल हम रेक्टेंगल को ले लेते हैं, रेक्टेंगल इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री L1, उसके बाद वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री L2। तो है यहाँ पे लिखोगे आपकी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी L1 is horizontal line of symmetry and L2 is vertical line of symmetry। ओके, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को करोगे। सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ के आ जाओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। आपको जो भी कुछ आपने ड्रॉ किया है उसको लेबल करके प्रॉपरली बताना भी है कि हम फिगर को ड्रॉ करने के बाद उसके थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, उसमें हमें दो व्हाट डू वी कॉल इट, लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमने पढ़ा है कि दैट L1 जो स्लीपिंग लाइन होती है, दैट लाइन आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यू विल नेम इट एज L1। यहाँ पे L1 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड L2 इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन 5th पार्ट बी। उसके बाद यू ट्राई टू ड्रॉ, आप सी पार्ट को खुद से करने की कोशिश करो। ट्राई टू ड्रॉ इट, सी पार्ट इज योर होमवर्क, है ना। एंड 4 पार्ट B I will tell you. Part C, mark it as your homework. Okay, part C is your homework. Now part D, a hexagon with exactly 2 lines of symmetry. आपको एक हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? हेक्सागन में we have 6 sides. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए कि हेक्सागन अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उसका क्या मतलब है। हेक्सागन इज अ पॉलीगन व्हिच हैज 6 साइड। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ अ हेक्सागन जिसमें एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो फर्स्ट पहली साइड हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हेक्सागन हो गया, A B C D E F G H। ये इसकी 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 साइड होगी।